Okay, so I hope this screen is visible to all the students. So let me start from the last question. Okay, so I will repeat this question again. Okay, so we have just introduced the associative memory in our last lecture. Okay, so what is the definition of associative memory? Associative memory is a memory where the content is stored, where the content is not stored by a specific address or location. Okay, it is stored directly by a content itself. Okay, so in this case, basically, if you type any word, okay, in associative memory, okay, the memory itself is capable for finding an empty location to store that word. Okay, so in this way, a data is stored in the associative memory. And how you read the data in associative memory? So for that, we just need to search some part of that content or some part of that word. Okay, so and we already explained the block diagram of the associative memory: argument register, where we need to put a word which we have to search. Key register, it means the part of that word that which we want to search, that comes under this key register. This is the main memory part. And in this match register, you will get the output of the matching words as 1, and the other values output as 0. Okay, so this is the simple working of your associative memory. So I think that part is already over, and we have started the first type of the associative memory, which is auto associative memory. Okay, so auto associative memory is capable of retrieving a piece of data only from a partial information of that piece of data. But remember, auto associative memory में एक problem क्या है? Okay, it is work only for one piece of data. Okay, एक टाइम पे वो एक ही piece पे work करता है. For example, इसलिए मैं बार बार आपको triangle का example दे रहा हूँ, या आप triangle की जगह पे word assume करो, square assume करो, कुछ भी. Okay, so if I want to search a square using auto associative memory, and if I just give the partial information like this, okay, then your output is again a square. Okay, but यहाँ पे conditioning क्या है? ये जो पार्शियल इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो, वो सेम पीस की पार्शियल इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो जिस पीस के लिए आपने मॉडल क्रिएट किया था. सो दिस इज द कंडीशन. सो इट विल वर्क ओनली फॉर वन पीस एट अ टाइम. ओके, सो this is the simple algorithm. Okay, in this case, remember the number of inputs and number of outputs are same, and this is the simple algorithm. This you can treat as our first step, this you can treat as second step, this we can treat as our third step. Okay, so I will remove this part from the PPT, so that I will update later on. In first step, we need to adjust the weights according to our input. जो input आपके पास है, okay, depend on that input we need to adjust our weight. So the formula of weight is summation of SI transpose into S, where I runs from 1 to n, where n is the number of inputs. Okay, and after that we just need to calculate the net input, and using that net input you will get the output. Okay, that is nothing but activation function. So remember this activation function also, it takes value 1 when z is positive, it takes value 0 at z equal to 0, and it takes value -1 when z is -1. Okay, and let me take this example. Okay, I will quickly explain this example. So question is like this: train the auto associative network for this input. Okay, so this is your triangle. ठीक है, तो आपको एक ऐसा मॉडल प्रिपेयर करना है. ओके, we have to prepare a model for this given triangle, we can say. Okay, and after that we have to test the auto associative network with one missing value, okay, one mistaken value, two missing and two mistaken values. Okay, तो उसके बाद आपको बस वो मॉडल टेस्ट करना है. एक केस में तो उन्होंने क्या दिया है, टेस्ट दैट मॉडल फॉर सेम इनपुट, है ना. सो अभी आप क्या करने वाले हो, ट्रायंगल के लिए आप एक मॉडल क्रिएट करने वाले हो. ओके, सो इनिशियली वी इन केस ऑफ ऑटो associative memory, as we need to prepare a model for a triangle, so consider a model from, or consider the input as triangle itself and consider output as triangle itself. तो पहले आप ये कंडीशन लेके ही मॉडल प्रिपेयर करने वाले हो, which
send input in which the input is exactly equal to the output. Okay, so using this condition, first we need to prepare a model. After that, if I give a partial information to this model, ये model आप prepare करने वाले using weights, and इसके बाद अगर आप partial information देते हो इस model को, like say if I give this information, still your output is triangle. If I give this information, still your output is triangle. So just from a partial information you will get the same output or the required output. But next condition क्या है? But in case of mistaken values, okay, for example अगर मैं ऐसा कोई एक पार्ट दे रहा हूँ, दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ योर ट्रायंगल. ओके, ये एक स्क्वायर का मैं आधा पार्ट कंसिडर कर, लाइक से यही मैं लेता हूँ. चलो, so clearly you can say this is not a subset of your triangle, so you will not get the output in this case. Okay, or you will get a wrong output. सो मिस्टेकन केस में और मिस्टेकन वैल्यूज के लिए आपको वो आउटपुट नहीं मिलेगा, आपको वहां पे रॉन्ग आउटपुट मिलेगा. सो दैट आल्सो वी कैन चेक मैथमेटिकली. ओके, सो लेट मी स्टार्ट नाउ. सो दिस इज योर input. So now let me find weights for our model. So the formula for weight, as there is only one input, so the formula of weight is S transpose into S, where S transpose is the column matrix, S is your row matrix. So if I do this multiplication, you will get a 4 by 4 matrix. Okay, this calculation is easy. Okay, you can easily check this calculation. Now, so जैसे आपके पास वेट्स आ जाते, वी कैन से दैट आवर मॉडल इज रेडी टू वर्क, है ना, और आवर मॉडल इज रेडी टू टेस्ट, है ना. वेट्स कैलकुलेट करना इज नथिंग बट मॉडल को ट्रेन करना, ये हमने ऑलरेडी देखा. ठीक है, सो नाउ लेट मी चेक आवर मॉडल फॉर द सेम इनपुट इन फर्स्ट केस. तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये सेम इनपुट इस मॉडल को देने वाला हूँ और मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट भी क्या है, सेम ही आना चाहिए. ओके, सो लेट मी चेक फॉर द सेम इनपुट -1 1 1 1. So if this is my input, first I need to calculate the net input. So net input क्या होगा, x into w. This is my x, this is my w. If I take the product, you will get the matrix as -4 4 4 4. And what is our activation function? Activation function takes value -1 if that number is negative. Otherwise it takes value 1. So you can see our output is -1 1 1 1. So this is the expected output. जो आपने input दिया है वही आपका output मिल रहा है. So this model is working for the this model will give a result for the same input, है ना. same input के लिए आपको अभी result मिल रहा है. Now let me check for the one missing value. This also we can treat as a partial information. तो अभी मैं same input ही रख रहा हूँ, बट उसमें से कुछ नंबर मिसिंग है ना. यह आपका मेन इनपुट था, इसमें से अभी ये नंबर मिसिंग है, तो उसके जगह पे मैं 0 ले रहा हूँ. नाउ आई विल चेक वेदर this model will give the same output from the partial information or not. So this is my partial information. Now let me check whether we'll get a same output or not. Okay, so if this is my input, calculate the net input, x into w, correct. So if I do this product, you will get the final matrix as -3 3 3 3. And again, if I apply the activation function for negative, here you will get output as -1, and for positive you will get the output as 1. ठीक है, and so here also you can see you will get the same response which is expected. Okay, तो partial information से भी आपको वो exact output समझ में आ जाता है. Not only this, we can also consider two numbers 0. We can also take two numbers 0. Still we can check whether we'll get the same response or not. तो इस केस में बस क्या होगा, यहाँ पे -2 2 2 2 आएगा, and you will get the same output which is expected. Okay, तो ये हमने कल देखा था. बट व्हाट हैपन इफ आई कंसिडर द मिस्टेकन वैल्यूज हियर, है ना. तो अभी मैं क्या करूँ, मिस्टेकन वैल्यूज में उसको कभी रिप्लेस उस नंबर को 0 से रिप्लेस मत करो. 0 स्टैंड्स फॉर द मिसिंग वैल्यूज, नॉट फॉर द मिस्टेकन वैल्यूज. ओके, ये सिंस दिस इज द प्रॉब्लम ऑन योर बाइपोलर थिंग्स. सो वी नीड टू रिप्लेस दिस -1 by 1, एंड 1 को आप रिप्लेस कर सकते हो -1 से, है ना. यही मिस्टेकन पार्ट आप कंसिडर कर सकते हो, है ना. -1 को आप 1 से रिप्लेस कर सकते हो और 1 को आप -1 से रिप्लेस कर सकते हो. सो हियर आई कंसिडर two mistaken values. Okay, here I consider two mistaken values. तो आप देखो -1 को मैंने वैसे ही रखा है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ और इसको भी मैं चेंज कर रहा हूँ. तो इन दोनों की जगह पे अभी मैं लेने वाला हूँ -1 -1. नाउ दिस इज द रॉन्ग इनपुट. ओके, ये मिसिंग इनपुट नहीं है, रॉन्ग इनपुट ही है. Now if I test a model for this wrong input, you will get the output as 0 0 0 0, and if I apply the activation function, again you will get here 0 0 0. So not getting the correct response. So this model will not give a result for the mistaken values. Correct? तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. Okay, any doubt in this part now? Yes, any doubt from your side?
Up to this part, tell me an yes or no. Bolo. Can I start the next part now? Yes? Yes, sir. Okay. So now the next part is hetero associative memory. Okay. तो इसमें इन जनरली क्या होता है, पहले आपको मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ. हेटेरो एसोसिएटिव मेमोरी इज कैपेबल ऑफ रिट्राइविंग अ पीस ऑफ डाटा. तो यहां से भी आप पार्शियल इंफॉर्मेशन से डाटा रिट्राइव कर सकते हो. ओके, बट कंडीशन क्या है देखो. So it is capable of retrieving a piece of data of one category upon the presentation of data from another category. Okay, so यहाँ पे बस क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रायंगल सर्च कर रहे हो, ओके, या अगर आपने ये एज ए इनपुट दिया तो आपको इससे सिमिलर सारे पैटर्न्स मिल जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हेटेरो एसोसिएटिव मेमोरी में बेसिकली क्या होता है, वो पैटर्न को सर्च करता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि मे बी वो उसमें से कुछ ऐसे पैटर्न्स आएंगे विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर ट्रायंगल, है ना. उसमें से कुछ ऐसे भी पैटर्न, देयर आर ओनली 2 एजेस, तो आपको ये भी एक पैटर्न आ सकता है. सो इन दैट केस यू मे गेट अ पैटर्न विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर ट्रायंगल. ओके, सो ये इसमें आप ये बोल सकते हो इन जनरल, अगर आप एक क्लस्टर एज ए इनपुट देते हो यहाँ पे, है ना, कोई भी एक क्लस्टर अगर आप एज ए इनपुट देते हो, तो ये हेटेरो एसोसिएटिव मेमोरी क्या करती है, वो वैसे सारे सिमिलर क्लस्टर्स को सर्च करके आपको देगी. ठीक है, सो दिस मेमोरी विल गिव द आउटपुट एज द सिमिलर पैटर्न्स और सिमिलर clusters, okay, which is given as a input. Okay, so this is the difference between your hetero associative memory and auto associative memory. Auto associative memory में जिस पीस का वो पार्ट था वही पीस सर्च होगा, हेटेरो में ऐसा नहीं होगा. ओके, हेटेरो में क्या होगा, वो जो पीस आपके पास है, ओके, उससे सिमिलर जितने भी पैटर्न्स रहेंगे मेमोरी में, ओके, वो सारे पैटर्न्स सर्च वहां पे हो जाएंगे. दैट इज ऑल अबाउट द हेटेरो एसोसिएटिव मेमोरी. तो यहाँ पे एल्गोरिथम सिमिलर है, बट यहाँ पे आपके पास एक आउटपुट होगा. ओके, यहाँ पे हमने सेम इनपुट के लिए हमें ट्रेन नहीं करना है ना, क्योंकि आपको मैंने पहले बोला कि जो इनपुट आप देखो वही आपको आउटपुट यहाँ पे नहीं मिलेगा. दैट्स व्हाई हियर इनपुट इज डिफरेंट एंड आउटपुट इज डिफरेंट. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर नाउ. ओके, यहाँ पे सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि ऑटो में क्या होता है, एक ही पीस के लिए आप वो मॉडल क्रिएट कर रहे हो. यहाँ पे इनपुट डिफरेंट होगा और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा, सिमिलर पैटर्न्स में आ जाएंगे. सो ऐसा कंपलसरी नहीं कि वो ट्रायंगल ही आएगा, है ना. अगर वो ट्रायंगल आता है तो इनपुट एंड आउटपुट सेम होता है ना. फॉर एग्जांपल अगर आपने ट्रायंगल की पार्शियल इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आपको ट्रायंगल मिलता है देन इट कम्स अंडर ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी. बट अगर आपको कोई एक ऐसा पार्ट मिलता है विच इज नॉट अ सबसेट ऑफ योर ट्रायंगल, देन इट कम्स अंडर हेटेरो एसोसिएटिव मेमोरी. ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट डिफरेंट होगा और इनपुट डिफरेंट होगा. सो दैट्स व्हाई हियर आई कंसीडर द इनपुट एज, लेट मी जस्ट 1 minute. Let me just erase this part so that I can save this. ठीक है, हाँ. So हाँ, so here what is my input? My input xi is si and the output is targeted output. Okay, if I consider this HEB result basically. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक इनपुट कंसिडर कर रहा हूँ और एक आउटपुट कंसिडर कर रहा हूँ. ठीक है, तो दिस SI is the input and Y is the output. After that we need to just calculate the so formula is similar. Weight calculation का formula similar ही है. We just need to remember only these 3 steps. ये मैं erase करने वाला हूँ. Okay, so after that just calculate net input and then use the same activation function which gives us value 1 when z is positive, which gives us value 0 when z is 0, and it gives a value -1 when z is negative. Okay, and let me take one example on this. Okay, so question क्या है, train a hetero associative network to store the given bipolar input vector s is equal to s1 s2 s3 s4 to the output vector t1 t2. So here we have to train one hetero associative network, okay, for this input, s as my input and t as my output, and also test the performance of the network for the missing data and the mistaken data. Okay,
मिसिंग डाटा के लिए चेक करो, क्योंकि एट देन दोनों का यूज क्या होता है, पार्शियल इंफॉर्मेशन से भी आप अपना रिक्वायर्ड आउटपुट सर्च कर सकते हो, है ना. इट्स सिमिलर टू जैसे आप की में देते हो ना 101 देते हो, फिर भी आपको एग्जैक्ट आउटपुट आपको समझ में आ जाता है. सो पार्शियल इंफॉर्मेशन से भी आप उसको सर्च कर सकते हो. सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ऑटो एंड हेटेरो एसोसिएटिव मेमोरी. सो आफ्टर दैट वी नीड टू चेक फॉर द पार्शियल इंफॉर्मेशन, ऑल्सो वी नीड टू चेक फॉर द मिस्टेकन डाटा. Okay, so can anyone tell me how many inputs are given in this case? Can anyone tell me how many inputs are given in this case? Yes, bolo. Yes is my input, T is my output. 4. So 4 inputs are given and 4 output are given. So can anyone tell me the first input? What is our first input? 1 minus 1 minus 1 minus 1. And what is the first output? Minus 1 and 1. Okay. Similarly, we can calculate S2. So what is S2? This is my second input. 1 1 minus 1 minus 1. And the corresponding expected output is minus 1 and 1. What is third? Please correct me if I wrong. अगर कहीं पे कुछ साइन मिस्टेक हो जाती है तो minus 1 minus 1 minus 1 and 1, and the targeted output is 1 and minus 1, and the last input S4 is equal to minus 1 minus 1 1 1, and the corresponding expected output is what? 1 and minus 1. Okay, so here we have given this 4 inputs and corresponding 4 outputs. तो S1 के लिए जो expected output है वो क्या है? T1 है. S2 के लिए जो expected output है वो क्या है? T2 है. S3 के लिए जो आपका expected output है वो क्या है? T3. Like that. Okay. So now, so can anyone tell me how we find, or what is the formula of weights for this case, or how you find weights for this given model? आपको अगर याद है, यही वेट्स आपने प्रीवियसली लर्निंग रूल से कैलकुलेट किया है, इफ यू रिमेंबर, है ना. वहां पे आप 10 से पास करते थे, फिर 01 से पास करते थे, ऐसे. तो यूजिंग मोर देन 1 इनपुट्स वी कैन फाइंड दी वेट्स. और ये आपने ऑलरेडी लर्निंग मेथड्स में, लर्निंग रूल्स में कैलकुलेट किया था. बट यहाँ पे बस हम एक डिफरेंट मेथड कंसिडर कर रहे हैं एज फार एज एसोसिएटिव मेमोरी इज कंसर्न. सो कैन एनीवन टेल मी हाउ वी फाइंड वेट फॉर दिस पर्टिकुलर केस? Or what is my final weight? I want my final weight. Can anyone tell me that? What is my final weight for this inputs and outputs? Formula क्या है? Weights का summation of SI transpose into TI over I. So can anyone tell me now? What is the formula of final weight here? Please try. Okay, wrong आने दो, but at least आप try करो. So can anyone explain me here what is the formula of weight? Tell me the first term at least. Tell me the first term. Wrong आने दो, at least आप try करो. ये आपका फॉर्मूला है. So using this, can you tell me the first term? बोलो जल्दी. क्या आने वाला है फर्स्ट टर्म आपका? जस्ट पुट i इक्वल टू 1. सो व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म क्या होगा? S1 ट्रांसपोज इनटू T1. ओके. हाँ. व्हाट इज योर सेकंड टर्म? S2 ट्रांसपोज इनटू T2. व्हाट इज योर थर्ड टर्म? S3 ट्रांसपोज इनटू T3. एंड व्हाट इज योर फोर्थ टर्म? S4 ट्रांसपोज इनटू 4. दिस इज नथिंग बट the W1, W2, W3 and W4. क्लियर? तो यह आपका क्या है? फाइनल वेट. ओके. तो आप W1 इज व्हाट? सो W1 इज द वेट एसोसिएटेड विद द फर्स्ट इनपुट. W2 is the weight associated with the second input. W3 is the weight associated with third input, and W4 is the weight associated with fourth input. So one by one we need to find all these weights. Okay. So let me start from the W1. So for the first pair S1 and T1, so W1 is what? S1 transpose into
T1 ट्रांसपोज. सो S1 ट्रांसपोज कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा एंड T1 ट्रांसपोज इज द रो मैट्रिक्स एंड यू कैन सी द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज व्हाट 4/2. अभी मैं आपको रिजल्ट देता हूं. इन जनरल हमेशा जो आपका वेट मैट्रिक्स आने वाला है ना, ओके, W, उसकी ऑर्डर क्या होगी? कैन यू जनरलाइज फ्रॉम दिस? उसकी ऑर्डर क्या होगी? उसकी ऑर्डर क्या होगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इनपुट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आउटपुट. तो यहाँ पे जो इनपुट था उसमें कितने एलिमेंट्स थे? 4. और यहाँ पे जो इनपुट था उसमें कितने एलिमेंट्स थे? 4. और यहाँ पे जो आउटपुट है उसमें कितने एलिमेंट्स है? 2. तो कंपल्सरी जो आपका वेट मैट्रिक्स होगा करस्पॉन्डिंग टू दिस इनपुट एंड दिस आउटपुट, इट हैज ऑर्डर 4/2. ये ऐसा ही आना चाहिए. ओके, सो रिमेंबर दिस ट्रिक. तो इसलिए उस हिसाब से ही आप इनको अरेंज करो. ठीक है. सो और यू कैन रिमेंबर इन दिस वे आल्सो, अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो. बट हमेशा याद रखो वेट मैट्रिक्स जो होगा उसकी ऑर्डर क्या आएगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इनपुट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आउटपुट. इनपुट मल्टीप्लाई बाय आउटपुट, दैट इज द ऑर्डर. Okay, so this is the simple matrix calculation. First row, first column, second row. Okay, first row, first column, first row, second column. Second row, first column, second row. Sorry, second row, first column, second row, second column. Like that, you can complete this matrix multiplication. So I will skip this part, but आप easily इसको कर सकते हो. So this is the calculation of W1. W2 के लिए आपको क्या करना है? Consider the second input and second output. Calculate W2, which is S2 transpose into T2, and this is my W2. Okay, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका बन जाएगा W2, and this is your W1. So now we have a value of W1 and W2. Let me also calculate W3. So for third input and for third output, your W3 is this. Okay, and for fourth input and for fourth output, your W4 is this. ठीक है. So now we have all these 4 weights. We have the value of W1, W2, W3 and W4. Now calculate the final weight matrix. So the final weight matrix is actually a sum of all these weight matrix. ये S1 input का weight matrix है, S2 input का है, ये S3 input का और ये S4 input का. So this is my final weight matrix and you can see that calculation is -4, 4, -2, 2, 2, -2 and 4 and -4. ठीक है. So ये आपका final वेट मैट्रिक्स है. ओके, तो उसके बाद क्वेश्चन क्या था? तो अभी आपने मॉडल ट्रेन किया है. ओके, ट्रेन किया है, आपने मॉडल क्रिएट किया है. वेट्स आ जाते तो मॉडल आपका रेडी हो जाता है. ओके, आपको पता है किसी भी मॉडल को ट्रेन करना है, मॉडल को क्रिएट करना है, नथिंग बट वेट्स को कैलकुलेट करना. ओके, क्योंकि वेट से ही सारी चीजें आप एडजस्ट करते हो. ओके, सो नाउ वी नीड टू चेक दिस मॉडल. ओके, वी नीड टू चेक दिस मॉडल फॉर द पार्शियल इंफॉर्मेशन. ओके, कि ये मॉडल पार्शियल इंफॉर्मेशन से आपको परफेक्ट आउटपुट देता है कि नहीं. ठीक है. सो अभी मुझे इस केस में ये बोलो, हाउ यू चेक दिस मॉडल फॉर द पार्शियल इंफॉर्मेशन एज वी हैव गिवन द 4 इनपुट्स. आप कैसे चेक करोगे फिर? एनी आइडिया? चलो अभी वेट मैट्रिक्स आ गया आपके पास, तो अभी मुझे इसके बाद चेक करना है किसी एक इनपुट के लिए, बट उस इनपुट की मुझे पार्शियल इंफॉर्मेशन ही देनी है. सो कैन एनीवन एक्सप्लेन मी हाउ आई कैन टेस्ट दिस मॉडल फॉर द पार्शियल इंफॉर्मेशन? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी दिस? इसके आगे आप इसको टेस्ट कैसे करोगे पार्शियल इंफॉर्मेशन के लिए या मिसिंग डाटा के लिए? कैन एनीवन ट्राई हाउ यू टेस्ट दिस मॉडल? क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में एक ही इनपुट था तो उसमें से कुछ वैल्यू 0 करके आपने चेक किया था, बट यहाँ पे 4 इनपुट से, तो आपको कैसे करना होगा? और कैन यू टेल मी और कैन यू एक्सप्लेन मी हाउ वी कैन टेस्ट दिस मॉडल फॉर 1 मिसिंग वैल्यू? बोलो, एनी आइडिया? और कैन एनीवन एक्सप्लेन मी हियर? क्या कर सकते हो आप? यस, टेल मी द इनपुट फॉर 1 मिसिंग वैल्यू. दिस इज माय क्वेश्चन. सिंपली टेल मी द इनपुट जिसको मुझे टेस्ट करना है फॉर 1 मिसिंग वैल्यू. बोलो. सी, अभी यहां पे 4 इनपुट्स है, तो आप 4 में से कोई भी एक रैंडम इनपुट सिलेक्ट कर सकते हो. ओके, प्रीवियस क्वेश्चन में एक ही था इसलिए प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, बट यहाँ पे 4 इनपुट है, तो 4 में से कोई भी एक इनपुट सिलेक्ट करो रैंडमली. लेट मी सिलेक्ट S3. आप कोई भी एक सिलेक्ट करो, ये आपकी चॉइस है टोटली. तो अभी मैं ये मॉडल टेस्ट करने वाला हूं S3 इनपुट के लिए. अभी मैं क्या करूंगा, S3 का
S3 जो आपका इनपुट था, ये मैं इस इनपुट की मैं क्या करने वाला हूं, आई विल गिव only a partial information for this S3 input, then I will check whether I will get this expected output or not. Are you getting my point? मैं अभी क्या करने वाला हूं, क्योंकि मुझे ये मिसिंग डाटा के लिए चेक करना है, तो अभी मैं क्या करूंगा, S3 जो इनपुट था उसकी मैं पार्शियल इंफॉर्मेशन वहां पे देने वाला हूं मॉडल को, और ये चेक करूंगा कि मुझे ये 1 -1 आउटपुट आता है कि नहीं. आई एम एक्सपेक्टिंग दिस एज माई आउटपुट. क्लियर? यस और नो में बोलो. इज दिस पार्ट क्लियर? We can also check this for any other input. आप S1 के लिए भी चेक करो, S1 की पार्शियल इंफॉर्मेशन दे सकते हो और चेक करो आपको -1 आउटपुट आ रहा है कि नहीं. आप S4 के लिए भी चेक कर सकते हो, S4 की पार्शियल इंफॉर्मेशन आप दे दो वहां पे और चेक करो आउटपुट आपका 1 -1 आ रहा है कि नहीं. Are you getting this point? Yes sir. Okay. So let me test this model for S3 वेक्टर. तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ना ये फर्स्ट जो एंट्री इसकी जगह पे मैं 0 लेता हूँ, बाकी नंबर्स को मैं एज इट इज रखता हूँ, -1 1 एंड 1. ओके, लेट मी कम टू दिस स्टेप. सॉरी, यहाँ पे आई थिंक 2 मिसिंग के लिए उन्होंने चेक किया है. ठीक है. ओके, लेट मी चेक हियर फॉर 1 मिसिंग वैल्यू. चलो पहले एक बार 1 मिसिंग के लिए चेक करते हैं. ये पार्ट नहीं है यहाँ पे, बट मैं चेक करके देता हूँ. सो फॉर 1 मिसिंग वैल्यू, सो व्हाट इज माई इनपुट. सो मुझे हाँ, सो 1 मिसिंग वैल्यू के लिए इनपुट में क्या देने वाला हूँ, x इज इक्वल टू, आई विल टेक द फर्स्ट वैल्यू एज 0, second value is -1 and third number is 1. let me check again, wrong नहीं जाना चाहिए. हाँ, ये 0 ले रहा हूँ, -1 1 और एक्सपेक्टेड क्या है 1 and -1. चलो, और मुझे एक्सपेक्टेड क्या है, माई एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 1 and -1. ठीक है. ओके, डन. सो लेट मी चेक नाउ फॉर दिस. ओके, तो ये मेरा इनपुट है. W इज ऑल्सो देयर. लेट मी कैलकुलेट नाउ नेट इनपुट. तो Z होता है आपका नेट इनपुट विच इज इक्वल टू x इंटू W. सो विच इज इक्वल टू x क्या था आपका, x इज दिस 0 -1 -1 1 and what is my W matrix. So my W matrix is -4 4, after that -2 2, after that 2 and -2, after that 4 and -4. okay, let me do this product. okay, so first row first column क्या आएगा, ये आएगा 0, then +2, then -2 and then just a 4. okay, next first row second column क्या आएगा, 0 -2 +2 कैंसिल हो जाएगा and -4. is this correct? yes or no? is this correct? Yes sir. okay, and now you tell me what is our activation function for 4. आपका आउटपुट क्या था, since it is positive our output is 1 and -4 नेगेटिव है, तो आपका आउटपुट क्या है -1. देखो, you will get the same expected output. okay, so मिसिंग डाटा के लिए ये मॉडल आपका परफेक्ट वर्क कर रहा है. नॉट ओनली दिस, यू कैन ऑल्सो चेक फॉर द 2 मिसिंग वैल्यूज. तो यहाँ पे मैंने 2 मिसिंग के लिए आपको दिया है, तो ये भी नंबर में 0 कंसिडर करो. आप देखो, आई थिंक ये कोई और इनपुट के लिए होगा, आई डोंट नो. 0 1 0 -1, ये कौन से के लिए, आई थिंक S2 के लिए क्या, 1 and -1, सेकंड एंड फोर्थ 1 and -1. हाँ, S2 के लिए चेक किया उन्होंने. ओके, उन्होंने S2 के लिए चेक किया. उन्होंने क्या किया है, शायद इसको 0 लिया है और इसको भी 0 लिया है. ठीक है, एंड फिर आपका एक्सपेक्ट आउटपुट क्या है, -1 and 1. ठीक है, तो आप अभी कर सकते हो. तो 0 1 0 -1, इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ आंसर आता है ये. सो ये आ रहा है -1 and 1. तो ये था आपका S2 का मिसिंग डाटा था, S2 का मिसिंग डाटा था, बट आपको सेम आउटपुट मिल रहा है जो आपने एक्सपेक्ट किया था. सो दिस इज, सो इन दिस केस यू विल गेट द करेक्ट रिस्पॉन्स. ओके, ऑल्सो वी कैन चेक फॉर द मिस्टेकन डाटा. तो हमें मिस्टेकन डाटा के लिए मैं क्या करता हूँ, ओके, अब ये कौन सा दिया है, मैंने मुझे एक बार चेक करना होगा. -1 and -1 आ रहा है ना, एक मिनट. मुझे S3 क्या था, -1 and जस्ट 1 मिनट. -1 कौन सा चेंज किया है, 1 1 -1 1 1 -1. एक मिनट, मैंने वो मेंशन नहीं किया, तो समझ में आ जाता. -1 1 1 -1. हाँ, अभी देखते हैं किससे कंपेयर हो रहा है ये. -1 1 1
ओके, S3 के साथ ही है, ओके। हाँ, तो अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अभी S3 आपका क्या था, -1 -1 -1 एंड 1, सॉरी, हाँ, S3 आपका क्या था, -1, यहाँ पे आप देखो, यहाँ से समझ में आएगा, यही से एक्सप्लेन करता हूँ। यह आपका S3 था, ओके। तो S3 में ले रहा हूँ, इसलिए मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, 1 एंड -1, दिस इज माई एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो अभी मैं मिस्टेक करने के लिए चेक करने वाला हूँ, मिस्टेक करके चेक करने वाला हूँ। तो मिस्टेक में क्या करता हूँ, ये जो -1 का जो नंबर है इसको मैं चेंज करता हूँ, सो आई विल चेंज दिस -1 टू 1, तो इसको मैं चेंज करता हूँ 1 पे, और ये जो सेकंड नंबर है इसको भी मैं चेंज करता हूँ 1 पे। तो अभी मेरा इनपुट क्या जा रहा है, -1 1 1 1, या -1 है, सॉरी। तो ठीक है, किसी भी एक केस में चेक कर सकते हैं, आई डोंट नो कि यहाँ पे मैंने कुछ तो S3 के लिए एग्जांपल सेट कर रहा था, बट ठीक है, लेट मी चेक दिस फॉर -1 1 1 एंड 1। मैं इस केस में चेक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एट देन किसी भी एक केस में तो एक्सप्लेन करना ही है। सो नाउ लेट मी चेक फॉर द मिस्टेकन डाटा। ये रैंडमली आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि जो मैंने बोला है वही आपको करना है, आप अपने हिसाब से किसी भी इनपुट में मिस्टेक करके चेक कर सकते हो। सो ये ओपन रहेगा, ओके। सो मैं क्या करने वाला हूँ, S3 में मैं मिस्टेक करने वाला हूँ, ओके। S3 में मिस्टेक करने वाला हूँ। S3 का मेन इनपुट आपका क्या था, व्हाट इज द मेन इनपुट ऑफ S3, -1 -1 -1, 3 टाइम्स -1, ओके। सो -1 -1 -1 एंड 1, ये एक्चुअली आपका S3 है, और यहाँ पे जो टारगेटेड आउटपुट है वो आपका क्या है, 1 एंड -1, ठीक है। टारगेट आउटपुट आपका क्या है S3 का, 1 एंड -1, ओके। तो अभी यहाँ पे मैं मिस्टेक के लिए चेक करने वाला हूँ। सो मिस्टेक अभी मैं क्या करता हूँ, आई विल चेंज एनी 2 एंट्रीज, मैं कोई भी 2 एंट्रीज चेंज करता हूँ। सो लेट मी टेक माई इनपुट एज, लेट मी चेंज एनी 2 एंट्रीज, ओके। लेट मी रिप्लेस दिस 2 वैल्यूज बाय 1, इन दोनों को मैं 1 से रिप्लेस करता हूँ। तो क्या मिलेगा, -1 1 1 1, ठीक है। नाउ लेट मी चेक फॉर दिस इनपुट। तो अभी मुझे कैलकुलेट करना होगा नेट इनपुट विच इज x इंटू डब्ल्यू। तो x मेरा क्या है, -1 1 1 1, और मेरा w क्या है, -4 4 -2 2 2 -2 एंड 4 -4, ओके। सो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे आंसर, लेट मी चेक फॉर द फर्स्ट, लेट मी टेक द फर्स्ट कैलकुलेशन। सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, यह आएगा +4 के बाद ये -2, यू विल गेट 2, फिर यहाँ पे आ रहा है 2 विच बिकम 4 एंड देन 4 8 आ रहा है क्या, चेक करो एक बार, ओके। ये 4 आएगा, ये -2, सो 2 2 4 8, ओके, इट गिव्स मी 8, ठीक है। लेट मी चेक फॉर द नेक्स्ट केस, ठीक है। नेक्स्ट केस में क्या है, -4, ओके, -4, आफ्टर दैट +2, ओके, -4 +2 इज -2, आफ्टर दैट -2 -4, ये शायद -8 आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे तो वो अभी दे रहा है करेक्ट आंसर जो आपने एक्सपेक्टेड किया था। अभी आपको एक ऐसी एंट्री आइडेंटिफाई करनी जहाँ पे ये रॉन्ग दे रहा है, ओके। सो आई थिंक उसके लिए थोड़ा अभी वर्कआउट ही करना होगा। ये जो मैंने वर्कआउट किया था अभी यहाँ पे करेक्ट आ रहा है, बट ऐसा नहीं है कि सारे केसेस में करेक्ट दे रहा है, तो आपको ऑल पॉसिबल केसेस चेक करने हैं, ओके। सो मिस्टेकन डाटा के लिए आपका इन जनरल स्टेटमेंट चाहिए, तो आपको एक ऐसी केस आइडेंटिफाई करनी है जहाँ पे ये करेक्ट नहीं आ रहा है, दैट इज व्हाट आई वांट, ओके। एक ऐसी केस आइडेंटिफाई करनी है जहाँ पे ये रॉन्ग आ रहा है। तो ये यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, ये मैंने, एक मिनट, ये -1 1 1 -1, इसको ही मैं थोड़ा अच्छे से देखता हूँ किस के साथ था ये। लेट मी जस्ट इरेज एवरीथिंग। -1 1 1 -1 कहाँ पे आ रहा है ये, ओके। S3 के साथ तो नहीं हो रहा है, S3 में पहला नंबर मैच कर रहा है, सेकंड कौन सा, ये मैच कर रहा है, ओके। S3 की लेवल में सकते हो, हाँ S4 होगा शायद, एक मिनट, लेट मी चेक फॉर S4, हाँ पहला मैच कर रहा है, ये सिमिलर ले रहा हूँ मैं, सेकंड मैच नहीं कर रहा है, थर्ड मैच कर रहा है, ओके।
डन, सॉरी, हाँ बाकी ये दो मैच नहीं कर रहे, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसको मैंने चेंज किया है, दिस आई चेंज टू -1, दिस आई चेंज टू 1। ओके, अभी इस केस में चेक करते हैं कि आंसर क्या आता है। मैंने आपको पहले बोला ना कि आपको ये प्रूव करना है कि मिस्टेकन वैल्यू के लिए ये वर्क नहीं कर रहा है, तो ये आपको पेयर आइडेंटिफाई करनी है जहां पे आपको रॉन्ग आउटपुट मिल रहा है। ओके, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, S4 में ये चेंज कर रहा हूँ, S4 में सेकंड एंट्री को मैं चेंज कर रहा हूँ और फोर्थ एंट्री को भी मैं चेंज कर रहा हूँ। सो हियर आई विल गेट दिस पार्ट। मैंने ये लिखा नहीं इसलिए मुझे याद नहीं, बट ये मैंने S4 में मिस्टेक की है, अभी याद हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ लेट मी चेक इन दिस केस। सो दिस इज माय इनपुट -1 1 1 -1, दिस इज माय W मैट्रिक्स। सो लेट मी कैलकुलेट नेट इनपुट, सो Z इक्वल टू X इंटू W। अभी इस केस में चेक करते हैं क्या आता है। सो -1 -4 प्लस 4 ये आएगा -2 विच इज 2, देन इट बिकम 4 and then it become -4 which is 0, करेक्ट। अभी ये 0 आ रहा है, यू कैन चेक, ठीक है। नेक्स्ट केस में भी ये आ रहा है -4, आफ्टर दैट +2, आफ्टर दैट -2, आफ्टर दैट +4, यू कैन सी ये भी कैंसिल हो रहा है, तो सेकंड वैल्यू इज आल्सो 0। एंड वी नो दैट फॉर 0 आउटपुट, सॉरी फॉर 0 इनपुट आपने आउटपुट भी क्या सेट किया है, 0 सेट किया, बिकॉज ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन पॉजिटिव के लिए 1 लेता था, -1 की नेगेटिव के लिए -1 लेता था, और 0 के लिए 0 दे रहा है वो। सो हियर विल नॉट गेट द करेक्ट रिस्पॉन्स। तो मिस्टेकन के लिए ये वर्क नहीं कर रहा है, बट मिसिंग डाटा के लिए ये वर्क कर रहा है। और ये आपको पता है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव मेमोरी। ओके, एसोसिएटिव मेमोरी में आप क्या कर सकते हो, पार्शियल इंफॉर्मेशन से भी वो डाटा या वो कंटेंट आप सर्च कर सकते हो। सो दीज आर द टू एल्गोरिथम्स, ऑटो एंड हेटेरो एसोसिएटिव नेटवर्क। ओके, सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल नाउ। एनी डाउट? कुछ भी डाउट है तो आप पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, एंड नाउ दिस द सेकंड लास्ट टॉपिक। इसके बाद एक ही टॉपिक है, एंड दैट इज ऑल अबाउट योर न्यूरल नेटवर्क पार्ट। ओके, उतना ही न्यूरल नेटवर्क होगा, उसके बाद फिर हमें फजी स्टार्ट करना है, ठीक है। सो आफ्टर दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 4th यूनिट। 3rd यूनिट के कुछ वीडियोस में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो एक वीडियो मैंने शेयर किया आप सबके साथ, विच इज द इंस्टॉलेशन ऑफ मैटलैब। टुडे यू विल गेट द सेकंड वीडियो, और एक और वीडियो आपको मिल जाएगा कल। सो प्लीज गो थ्रू ऑल दीज वीडियोस। मे बी ऑन संडे और सैटरडे इवनिंग आई विल फ्लोट वन असाइनमेंट ऑन दोज वीडियोज ओनली। उन वीडियोज का यूज करके ही आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक असाइनमेंट में फ्लोट करने वाला हूँ, और एक डेडलाइन भी आपको मैं दूंगा, और आई विल ऑल्सो गिव द इंस्ट्रक्शन कि कहाँ पे सबमिट करना है। सो दैट असाइनमेंट वी नीड टू सबमिट बिफोर मंडे। तो आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, बट एक ही दिन में आपको कंप्लीट करके देना, इसलिए स्टेप बाय स्टेप एटलीस्ट आप वीडियो देख के रखो। एन असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए आपको हार्डली 10 मिनट चाहिए, तो उतनी लेंदी असाइनमेंट नहीं है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। ये टॉपिक एक्चुअली हमें एरर के बाद ही स्टार्ट करना था, बट ठीक है, बट हमने थोड़ा एंड में स्टार्ट किया है। सो ऑप्टिमाइजेशन मीन्स व्हाट? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी दैट? What do you understand from the word optimization? आपको अभी तक क्या पता है ऑप्टिमाइजेशन के बारे में? और यहाँ पे हमारा ऑप्टिमाइजेशन का टारगेट क्या है? What is the target for as far as ANN model is concerned? So can anyone tell me what is mean by optimization? आप अपनी लैंग्वेज में बोलो, या जो जैसे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, बट what is the meaning of optimization? Anyone? Controlling error. Good, controlling error, but I need mathematical definition. Definition में नहीं, mathematical meaning चाहिए मुझे ऑप्टिमाइजेशन का। mathematical meaning मतलब अभी यहाँ पे मुझे ऑप्टिमाइज करना है, इस मशीन को मुझे ऑप्टिमाइज करना है, मीन्स व्हाट? या एरर को मुझे ऑप्टिमाइज करना है, मीन्स व्हाट? सो मैथमेटिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमाइजेशन? या ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक अगर आपने पार्ट कहीं पे सुना है तो ही आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। सो रिमेंबर, ऑप्टिमाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मैक्सिमाइंग और मिनिमाइज, और इट इज अ मैथमेटिकल फंक्शन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। सो जनरली ऑप्टिमाइजेशन में आप यही दो चीजें करते हो। So what is optimization? Optimization is a mathematical formula by which we can maximize or we minimize the value of a given function.
ऑप्टिमाइजेशन में आप क्या करते हो, जो भी आपका गिवन फंक्शन या जो भी आपकी वैल्यू है, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ही बोल रहा हूं मैं, जो भी आपके पास फंक्शन है उस फंक्शन को एक तो आप मिनिमाइज करते हो मतलब आप उसका मिनिमा कैलकुलेट करते हो, या तो आप उस फंक्शन का मैक्सिमा कैलकुलेट करते हो, या तो आप उस फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हो, ठीक है। सो दैट कम्स अंडर ऑप्टिमाइजेशन। सो ऑप्टिमाइजेशन इज सिंपली द मिनिमाइजेशन और द मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ गिवन फंक्शन। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन का रोल क्या है, आपको पता है कि आपके पास एक एरर आती है एएनएन मॉडल में, सो इसलिए मैंने एक डायग्राम यहाँ पे कंसीडर किया। दिस इज अ सिंपल एएनएन मॉडल। यहाँ पे कुछ इनपुट है, कुछ वेट्स है, या आपका नेट इनपुट आ रहा है, उसके साथ एक बायस भी ऐड किया आपने विच वर्क एज अ इनपुट, है ना। फिर ये जो नेट इनपुट है या एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू पास होता है, फिर आपके पास एक आउटपुट आ जाता है, बट आपके पास एक टारगेटेड आउटपुट भी होता है ना, टारगेटेड आउटपुट और डिजायर्ड आउटपुट, ये सिमिलर वर्ड्स ही है, ओके। इन दोनों में जितना भी डिफरेंस आपका आएगा दैट बिकम योर एरर, ठीक है। तो ये एरर जितनी मिनिमाइज होगी उतना मॉडल आपका परफेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन का रोल क्या है, ऑप्टिमाइजेशन हेल्प अस टू मिनिमाइज द एरर फंक्शन और द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और इसका ऑलरेडी आपने आधा पार्ट कवर किया है। बैक प्रोपोगेशन जो मेथड थी आपकी, ओके, दैट कम्स अंडर दिस ऑप्टिमाइजेशन। सो बैक प्रोपोगेशन मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रेडियंट डिसेंट मेथड, ठीक है। ये अभी तक वर्ड मैंने यूज नहीं किया था, बट रिमेंबर बैक प्रोपोगेशन जो मेथड थी आपकी इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रेडियंट डिसेंट मेथड, ओके। अभी आपको आगे समझ में आएगा कि इन दोनों में क्या कनेक्शन है, ठीक है। सो ऑप्टिमाइजेशन का सिंपल मीनिंग क्या है, जो एरर आपके पास आ जाती है ना, विच इज द डिफरेंस ऑफ योर आउटपुट एंड टारगेटेड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट एंड टारगेटेड आउटपुट, उस एरर का आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है। इतना ही इस स्लाइड पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ना सी टू मिनिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन, ये करने के लिए आपको क्या चाहिए, वी नीड अ डेरिवेटिव, ठीक है। So derivative is the only function or is the only operator, we can say, is the only operator by which we can minimize or we can maximize that given function, ठीक है। तो इसलिए ऑप्टिमाइजेशन के बेसिकली दो एल्गोरिदम है, या दो कैटेगरी में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। एक जो कैटेगरी है जिसको आप क्या बोलते हो, फर्स्ट ऑर्डर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम, 99% यही यूज होने वाला है, ओके, आपको समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑर्डर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम, इसका सिंपल मीनिंग क्या है, आपने ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज करके आपने मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट किया है, ओके। ये 12th में भी किया होगा, या अभी फर्स्ट ईयर में भी आपने ये पार्ट लर्न किया है, ओके। सो सिमिलर एल्गोरिथम है, तो आप बस क्या करने वाले हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज करके विल ट्राई टू मिनिमाइज द एरर प्रेजेंट इन द गिवन मॉडल, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट केस। सो दिस एल्गोरिथम्स मिनिमाइज और मैक्सिमाइज लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन इज नथिंग बट एरर फंक्शन, ठीक है। ये सेम ही वर्ड्स है। f of x using the gradient values are with respect to the parameter, okay. Most widely used the first order optimization algorithm is gradient descent or simply a back propagation, ठीक है। So gradient values means what? Okay, gradient values means what? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। If you remember, आपने बैक प्रोपोगेशन में एक पैरामीटर कैलकुलेट किया था, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ e विद रिस्पेक्ट टू wi, याद आ रहा है? whether we have calculated this or not, ये हमने कैलकुलेट किया था कि नहीं, बोलो, याद आ रहा है ये पार्ट, डाबा ई बाय डाबा डब्ल्यू आई, फिर आप एक चेन कंसिडर करते थे ना, डब्ल्यू आई टू दिस, दिस टू दिस, तो ई टू डब्ल्यू आपको एक पाथ मिल जाता है, फिर आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डाबा ई बाय डाबा डब्ल्यू आई। तो ये जितने भी सारे वैल्यूज है, दिस आर कॉल्ड एज ग्रेडियंट वैल्यूज। जो भी कैलकुलेशन आपने किया था, दैट आर कॉल्ड एज ग्रेडियंट वैल्यूज। क्लियर? तो ये आपने ऑलरेडी ये सारा पार्ट किया है। इस टॉपिक में विल जस्ट सी द थिंग्स थ्योरेटिकली, यहाँ पे कहीं पे भी न्यूमेरिकल आपको नहीं आने वाला, जो आपने ऑलरेडी कंप्लीट किया है उसको ही थोड़ा
मतलब मैथमेटिकली मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला, बट इसमें कहीं पे न्यूमेरिकल नहीं आने वाला. ओके, विल जस्ट एक्सप्लेन द प्रोसेस. मैं आपको बस एल्गोरिदम एक्सप्लेन करने वाला हूँ. ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम. इसमें कुछ एल्गोरिदम्स आने वाले. अगर आप मैटलैब में देखते हो ना, देयर आर अराउंड 15 to 16 एल्गोरिदम्स आर प्रेजेंट इन द मैटलैब, है ना, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर बहुत सारे ऐसे एल्गोरिदम्स है. तो उसमें से एक एल्गोरिदम हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया, विच इज बैक प्रोपोगेशन. ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है. ठीक है, सो इट कम्स अंडर फर्स्ट ऑर्डर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम. नेक्स्ट जो कैटेगरी है, which is second order optimization algorithm. Okay, so second order optimization method use the second order derivative, obviously. Okay, so it uses the second order derivative, which is also called as Hessian matrix or Hessian. Okay, and by which we can minimize or maximize our error function or loss function. ठीक है, तो this is the general introduction, but since the second derivative is costly to compute. Okay, आपको पहले ही पता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इतना कुछ ट्रिवियल नहीं है, तो उसके बाद अगर आपको सेकंड ऑर्डर सारे डेरिवेटिव्स कंसीडर करने फंक्शन के, ओके, तो वो कैलकुलेशन करना ही थोड़ा डिफिकल्ट है. सो इट इज कॉस्टली टू कंप्यूट, एंड दैट्स व्हाई द सेकंड ऑर्डर इज नॉट यूज मच. ओके, या इसलिए ज्यादातर केसेस में सेकंड ऑर्डर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम यूज नहीं होता, और या ज्यादा लोग ये प्रेफर नहीं करते क्योंकि इसमें कंपटीशन डिफिकल्ट हो जाता है आपका. सो सेकंड ऑर्डर, ओके, हाँ, द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेल्स अस वेदर द फर्स्ट डेरिवेटिव इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, व्हिच हिंट्स एट द फंक्शन कर्वेचर. ये इसका बेनिफिट है सेकंड ऑर्डर का. बट आपको मैंने पहले बोला कि एज वी नो दैट कि सेकंड ऑर्डर में या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करना ही लेंदी टास्क है. ठीक है, तो इसीलिए आप इसका यूज करके मैक्सिमम मिनिमा कैलकुलेट नहीं करने वाले हो. क्या ये रेयरली यूज होता है, ज्यादातर केस में विल प्रेफर द फर्स्ट ऑर्डर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम. वहां से ही सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाते हैं. सो एज फार एज आवर सिलेबस इज कंसर्न, विल नॉट फोकस ऑन दिस सेकंड ऑर्डर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम. इसमें हमें ज्यादा कुछ फोकस नहीं करना है. विल मेजरली फोकस ऑन द फर्स्ट ऑर्डर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम. ओके, सो these are the some algorithms. Okay, और ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम. इस सब में आप क्या कर रहे हो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या चल रहा है ये टॉपिक. आपको करना है क्या है, आपको एरर को मिनिमाइज करना है. तो आपके पास ऐसे इटरेशन चाहिए. तो बैक प्रोपोगेशन जो था, इट इज वन ऑफ द इटरेशन विच मिनिमाइज द एरर. क्योंकि जब तक आपकी एरर मिनिमाइज नहीं होगी तब तक आपका मॉडल परफेक्ट होगा ही नहीं, और आप उस पर टेस्टिंग कर ही नहीं सकते हो. ओके, तो ये सारे ऐसे एल्गोरिथम्स हैं जिनका यूज करके आप एरर को मिनिमाइज कर सकते हो. दैट इज व्हाट द आइडिया. ठीक है, इन एल्गोरिथम को आपको ज्यादा इन डिटेल में प्रिपेयर नहीं करना है. ये थ्योरेटिकली ही आपको प्रिपेयर करना है और थ्योरेटिकली आएगा एग्जाम में. ठीक है, क्योंकि वन बाय वन इस पे जाना है, वी नीड अ लॉट ऑफ लेक्चर्स. But at least at the end I just want to introduce this topic कि there are some algorithms by which we can minimize the error present in the given ANN model. Okay, so आज के लेक्चर में we'll focus more on the first three algorithms, which are batch gradient algorithm, second is stochastic gradient algorithm, and third is mini batch gradient algorithm. इनमें से एक algorithm आपने already complete किया है, बस टाइटल अलग है. सो दैट आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन. ओके, सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एल्गोरिथम, बैच ग्रेडियंट एल्गोरिथम. नाउ कैन एनीवन टेल मी ये फॉर्मूला आपने कहां पे देखा है, इसलिए मैंने बोल्ड करके यहां पे कंसीडर किया. कैन एनीवन टेल मी ये फॉर्मूला आपने कहां पे यूज किया. रॉन्ग आने दो, बट आप ये बोलो कि ये आपने कहां पे ऐसा एक फॉर्मूला देखा है. सेम फॉर्मूला हमने ऑलरेडी यूज किया है. कहां पे यूज किया था आपने फॉर्मूला? डेल्टा लर्निंग. डेल्टा लर्निंग के टाइम पे आपने सिमिलर फॉर्मूला यूज किया था, बट एक ही डिफरेंस है. याद है? बैक प्रोपोगेशन में, बट यू आर ऑलमोस्ट क्लोज. जिसका भी आंसर डेल्टा लर्निंग था ना. ओके, अभी मैं उनके लिए एक्सप्लेन करता हूं. याद रखो हमेशा डेल्टा लर्निंग का फॉर्मूला भी सिमिलर था, बस क्या चेंज है, ये जो साइन था वो क्या था, पॉजिटिव था. करेक्ट ना? यस और नो? आपको
आपको याद आ रहा है कि नहीं? फिर इसको हमने पॉजिटिव साइन लिया था, फिर ये वैल्यू कैलकुलेट की थी, वो फाइव डैश ऑफ जेड एंड ऑल, वो सारा पार्ट हमने वो कैलकुलेट करके दिया था, ठीक है। अब या शायद आपको वो प्रूफ याद नहीं होगा, बट इतना याद रखो, डेल्टा लर्निंग में ये साइन प्लस होता है और बैक प्रोपोगेशन में साइन निगेटिव होता है। और इन जनरल अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो जो लर्निंग रूल्स हमने देखे थे, कौन कौन से लर्निंग रूल्स देखे थे हमने। फॉर एग्जाम्पल सॉरी, पहला कौन सा था? परसेप्ट्रॉन, देन डेल्टा लर्निंग, और कौन सा था? हेब रूल। हाँ, हेब रूल, सॉरी, हाँ हेब रूल। तो इन सारे रूल्स में ये सारे फॉरवर्ड बायस रूल है, ओके। तो यहाँ पे आप वेट्स को एक्चुअली इंक्रीज करके जाते हो, सिंपली आप वेट्स में अभी इंक्रीज इज ऑल्सो डिपेंड ऑन कि ये वैल्यू क्या आ रही है, बट आप उन सारे फॉर्मूला प्लस करके ही जा रहे हो, है ना। तो ये परसेप्ट्रॉन, डेल्टा, हेब लर्निंग रूल, ये सारे फॉरवर्ड बायस के रूल है। मतलब आप फर्स्ट लेयर से स्टार्ट करते हो, एडजस्टमेंट आप फर्स्ट लेयर से स्टार्ट करते हो और लास्ट लेयर पे आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो इसलिए आप वेट्स में अपडेट या इंक्रीज करते जा रहे हो। बैक प्रोपोगेशन एक ऐसा एल्गोरिथम है जो लास्ट लेयर से स्टार्ट होगा, इसलिए बैक प्रोपोगेशन के टाइम पे आपको वही वैल्यूज में आपको निगेटिव साइन लेना है, या इसका मतलब आप वेट्स को डिक्रीज करके आने वाले हो। दैट इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड में ये साइन प्लस ही होगा, बट जब आप बैकवर्ड में कंसिडर करते हो ये साइन आपका नेगेटिव आएगा। सो प्लीज रिमेंबर दिस स्टेटमेंट। तो ये जो फॉर्मूला आपने देखा था, ये ऑलरेडी बैक प्रोपोगेशन में देखा था, और यही फॉर्मूला यूज करके आपने बैक प्रोपोगेशन से सारे वेट्स को एडजस्ट किया था, ठीक है। तो अभी मैं उतना इन डिटेल में उस टॉपिक पे नहीं जाने वाला, बट बैच ग्रेडियंट एल्गोरिथम इज नथिंग बट बैक प्रोपोगेशन, ठीक है। सो प्लीज गो थ्रू दैट पीपीटी अगेन। सो बैच ग्रेडियंट एल्गोरिथम, उसका ही मीनिंग क्या है? बैच ग्रेडियंट एल्गोरिथम इज नथिंग बट बैक प्रोपोगेशन, ठीक है। तो ये इतना याद रखो, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सिमिलर है, ओके। अभी कुछ चीजें मैं इसमें एक और बार एक्सप्लेन करता हूं। व्हाट आर द ड्रॉबैक विद दिस मेथड, या बैक प्रोपोगेशन में ड्रॉबैक क्या थे, या बैच ग्रेडियंट एल्गोरिथम के ड्रॉबैक क्या थे। यहाँ पे क्या हो रहा था, जो एरर आप कैलकुलेट कर रहे थे, या जो एरर आप यहाँ पे कैलकुलेट कर जो एरर आप यहाँ पे कंसिडर कर रहे थे, दैट इज फॉर द होल डाटा। जो एरर आपने बैक प्रोपोगेशन में कंसिडर की थी, इफ यू रिमेंबर, हमने जो ई लिया था, ई क्या था आपकी? व्हाट इज ई? ई इज द टोटल एरर, है ना। लेट मी शो यू विथ वन सिंपल एग्जांपल। इफ दिस आर माय इनपुट, दिस आर माय आउटपुट, this is x1 x2, this is and this is y1 y2, there is some targeted value yt1 and yt2. So can you tell me what is the total error present in this model? bolo, what is the total error present in this model? It is nothing but error present in y1 plus error present in y2, correct na? So 1 by 2 yt1 minus y1 whole square plus 1 by 2 yt2 minus y2 whole square। ये हमने कैलकुलेट किया था ना पैरामीटर, यस और नो, बैक प्रोपोगेशन में, यस और नो? यस सर। हाँ, तो ये जो पार्ट था, इसका मतलब क्या है? ये जो ई आप यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो ना, दिस इज द टोटल एरर प्रेजेंट फॉर द होल डाटा सेट। ये मैं थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने वाला हूं, आपको मैंने पहले बोला, इस पे कोई आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आने वाले। डिफरेंस समझने की कोशिश करो। बैक प्रोपोगेशन में या बैच ग्रेडियंट एल्गोरिथम ने हमने जो एरर कैलकुलेट की थी, वो टोटल एरर थी फॉर होल डाटा सेट। इसलिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे उसके कुछ ड्रॉबैक्स है। अभी के लिए इतना याद रखो कि बैच ग्रेडियंट एल्गोरिथम में जो एरर आपने कैलकुलेट की थी, वो होल डाटा सेट के लिए कैलकुलेट की थी। अभी इसमें मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूं। आई विल नॉट चेंज द फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला नहीं चेंज करने वाला हूं, मैं बस ये ना ये अप्रोच चेंज करने वाला हूं। सो ये हो गया पहला पार्ट, बैक प्रोपोगेशन या बैच ग्रेडियंट एल्गोरिथम में जितना, फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 इनपुट्स है, तो 1000 इनपुट के लिए एरर कैलकुलेट करो, और फिर उसके बाद उस एरर के साथ, क्योंकि आप पहले ये ई कैलकुलेट करते हो, फिर इस ई के साथ आप सारे वेट्स एडजस्ट करते हो। W1 को एडजस्ट करना है तो डैबा ई बाय डैबा W1, W2 को एडजस्ट करना है तो डैबा ई बाय डैबा W2, W4 को एडजस्ट करना है तो डैबा ई बाय डैबा W4। सो सिंपली यहाँ पे एंटायर ट्रेनिंग सेट पे ही आपका वर्किंग चलता है।
तो टोटल 5 ऑब्जर्वेशन थे, तो 5 के 5 ऑब्जर्वेशन के साथ आप न्यूरल नेटवर्क फॉर्म करते हो, आप एरर कैलकुलेट करते हो, फिर आप पैरामीटर्स को अपडेट करते हो. दैट इज द सिंपल वर्किंग. नाउ लेट मी एक्सप्लेन द अनदर प्रोसेस. ओके, इतना याद रखो कि ये पहली प्रोसेस थी जहां पे एंटायर डाटा सेट जा रहा था. नाउ लेट मी एक्सप्लेन द अनदर प्रोसेस. नाउ इसमें मैं कुछ अपडेशन करने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड एज स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट एल्गोरिथम. यही बैक प्रोपोगेशन का एक अपडेशन है ना. सो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट एल्गोरिथम में अभी मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग दैट होल डाटा सेट, ये पूरा डाटा सेट कंसिडर करने से अच्छा है कि मैं एक ही डाटा 1 by 1 पे ही मैं ऑपरेट करूंगा. ओके, अभी मैं क्या करूंगा, आई हैव दिस मेनी इनपुट्स, मैं क्या करूंगा बस एक इनपुट के लिए कंसिडर करूंगा, है ना, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया. तो यहां पे क्या होने वाला है, 1 by 1 इनपुट के साथ आप न्यूरल नेटवर्क फॉर्म कर रहे हो, आप उसकी एरर कैलकुलेट कर रहे हो, आप इमीडिएटली अपडेट भी कर रहे हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोनों में क्या डिफरेंस है उतना तो समझ में आ रहा है. फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, एंटायर डाटा सेट मतलब ये सारे इनपुट्स आपने कंसिडर किए थे और उसके बाद आपने एरर कैलकुलेट की थी, फिर उसके बाद आपका अपडेशन स्टार्ट हो रहा था. अपडेशन मतलब आप इस वेट्स को चेंज करके आ रहे हो बैक प्रोपोगेशन से या बैकवर्ड वे से, है ना. सो उसके कुछ ड्रॉबैक्स है. ओके, क्या ड्रॉबैक है आपको मैं कंपैरिजन टेबल ही देने वाला हूं. ओके, सो जस्ट टू अवॉइड दैट अभी मैं क्या करूंगा, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट एल्गोरिथम में इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट होल डाटा सेट आई विल कंसीडर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन और इंडिविजुअल इनपुट. मैं 1 by 1 इनपुट कंसिडर करने वाला हूं, फिर मैं डायरेक्टली उस इनपुट के लिए मैं फाइनल एरर कैलकुलेट करूंगा E1. ओके, उस E1 के साथ में वो सारे वेट्स अपडेट करने वाला हूं. ठीक है, that is nothing but stochastic gradient algorithm. मिनी बैच ग्रेडियंट एल्गोरिथम में सेम वे होगा. इसमें बस मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग वन एल्गोरिथम यहां पे मैं बैच कंसिडर करने वाला हूं. अब ये बैच की साइज है ना, ये क्या देनी है आपकी चॉइस है, आप बैच की साइज कुछ भी ले सकते हो, बट वो नंबर क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी लाई बिटवीन, इफ m इज द टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो जो x है वो 1 to m में लाई होना चाहिए. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल इफ आई फिक्स माय बैच साइज एज 2, तो मुझे सारे 2 बैचेस में या 2 बैचेस में मुझे इनपुट कंसिडर करना है. जैसे कि यहाँ पे अभी मैं फर्स्ट 2 इनपुट ही कंसिडर करने वाला हूँ, देन आई विल फॉर्म अ न्यूरल नेटवर्क, फिर मैं वहां पे एरर कैलकुलेट करूंगा, फिर मैं बैक प्रोपोगेशन का यूज करके वेट्स को अपडेट करने वाला हूँ. ठीक है, हाँ. एंड नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दिस 3 केसेस. फिर से सुनो, आई थिंक लास्ट 2 minutes आर देयर. यहां पे मैं आपको बैक प्रोपोगेशन प्रोसेस ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट वही प्रोसेस में मैं कुछ अपडेशन करने वाला हूं. ठीक है, ये आपकी ओरिजिनल प्रोसेस थी. ये जो ओरिजिनल प्रोसेस थी, यहां पे आप या सारे ऑल पॉसिबल इनपुट्स आप ले रहे थे, ऑल इनपुट्स. यहां पे आप क्या ले रहे हो, सिंगल इनपुट ले रहे हो, और यहां पे आप क्या ले रहे हो, इनपुट ले रहे हो बैच साइज में. इतना ही बस मैं चेंज करने वाला हूं, देन यू विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस 3 कैटेगरीज. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रोसेस, कैलकुलेशन, बैक प्रोपोगेशन का कैलकुलेशन सिमिलर होगा. ओके, बस मैं क्या चेंज करूंगा, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग और इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग एरर फॉर द होल डाटा सेट, आई विल कैलकुलेट इंडिविजुअली और आई विल कैलकुलेट इन अ बैच साइज. ठीक है, तो इससे क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, दैट आई विल एक्सप्लेन इन लास्ट 1 minute एंड देन विल स्टॉप. सो देखो, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, एंटायर डाटा सेट इज गोइंग फॉर द अपडेशन. यहाँ पे सिंगल ऑब्जर्वेशन इज गोइंग फॉर अपडेशन. यहाँ पे सबसे टॉप डाटा और बैच साइज के हिसाब से आप अपडेशन कर रहे हो. यहाँ पे क्या होता है, सिंस वी आर कंसिडरिंग द एंटायर डाटा सेट, एरर जो होगी, एरर आपकी स्मूथली रिड्यूस होगी. यू कैन सी ऐसे इस वे में आपकी एरर रिड्यूस हो जाएगी. यहाँ पे आप 1 by 1 कैलकुलेट कर रहे हो ना, 1 by 1 कैलकुलेट कर रहे हो, इसलिए जो एरर रिड्यूस होगी ना, उसमें कुछ नॉइज आएगा, तो आपका ग्राफ ऐसे दिखाई देगा. और यहाँ पे आप बैच साइज के हिसाब से आप अपडेट कर रहे हो, इसलिए ये भी थोड़ा नॉइजी होगा, बट लेसर देन दिस. ठीक है, स्मूथर कॉस्ट फंक्शन एज कंपेयर टू HGD, इससे तो थोड़ा वो स्मूथ होगा. ठीक है, ये तीनों का डिफरेंस है अगर आप डाटा सेट को डिवाइड करते हो तो. अभी आप देखो लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर. इस केस में क्या होता है, कंप्यूटेशन कॉस्ट इज वेरी हाई. कंप्यूटेशन कॉस्ट मतलब एरर. हाँ, इस केस में क्या होता है, आप टोटल डाटा सेट ही कंसिडर कर रहे हो ना एक ही टाइम पे, तो वो वैल्यू इतनी हाई आ जाती है ना, उसको रिड्यूस करना और डिफिकल्ट होता है. आप एज्यूम करो ना, एक केस में एरर कैलकुलेट करना या 10 केस में एरर कैलकुलेट करना है, 10 केस की एरर एक टाइम पे कंसिडर करते हो तो 10 केस में ज्यादा टाइम जाएगा. ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे कंप्यूटेशन कॉस्ट ज्यादा आती है, यहाँ पे कंप्यूटेशन टाइम ज्यादा लगता है.
इस केस में, क्योंकि आप इंडिविजुअली कैलकुलेट कर रहे हो। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंप्यूटेशन टाइम भी लेस लगता है जब आप बैच में करते हो, और कंप्यूटेशन कॉस्ट भी लेस आती है। ठीक है, सो टुडे विल स्टॉप हियर। दिस लास्ट पार्ट आई विल एक्सप्लेन अगेन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो विल स्टॉप हियर टुडे। ये बस थ्योरेटिकली आपको एग्जाम में लिखना है, बाकी इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं आने वाला। Okay, we'll stop here today. Just let me take the attendance.